Today we are discussing the law of demand. So today we will be discussing law of demand. Just a minute. I will be sharing a screen with you people. So the law of demand states that the quantity purchased varies inversely with price. The amount of quantity you are purchasing, as per law of demand, it varies inversely. There is not a direct relationship; it's an inverse relationship. So what we are saying, we are basically saying if the price increases, the law of demand says if the price increases, the quantity purchased would decrease, and if the price, I mean, and the vice versa. So the question, so the important aspect of the law of demand is that there is an inverse relationship. Simple to say, in a nutshell, what we can say, there is an inverse relationship between the quantity purchased, quantity demanded, and the price of the product, or price of the service. So we can say that once the price increases or it decreases, the quantity purchased, the quantity demands fluctuates accordingly. Then we need to know whether this law is applicable to all the quantities. So obviously, there can be some limitations as well, because students will say, how come is it applicable that the price of the product will increase, the quantity demanded will decrease? It may not be true always. The law of demand may not be true always, so it can fail in certain circumstances as well. So the law of demand can also fail in certain, but majority cases, what happens? Majority cases, what happens? People do purchase relatively while comparing the prices of the products. In fact, they compare the prices of the substitutes as well. Sometimes a substitute, as we were discussing in the cross demand. So yes, Faizan, once we talk about the cross demand is for both. It is for the substitutes, it's for the complementary products as well. So substitutes may be like a coffee, tea we are talking about. We are talking about the road transport. We are talking about the air transport. Those would be the substitutes. But in terms of the complementary products, like we discussed about the petrol and the car, the prices of the petrol and the demand for the cars. So those are the complementary products to each other, or bread and butter, we are saying. So the cross demand is basically for it. It is included for both the types of the categories, be it substitutes or be it the complementary products. Is it okay with you people? Faizan, you getting my point? Can you hear me? Hello. You got what I was saying? Basically, we had stopped during last session at the complementary products and the substitutes. So I checked it out. Sometimes, uh, not sometimes. I mean, once you talk about the cross demand, it goes for both the types of the categories, be it the substitutes, be it the complementary products. Is it okay? Okay, then the law of demand. So once we were talking about, say we are saying the basic design of the law of demand is that there is an inverse relationship between the quantity demanded and the price. But sometimes what happens, people may ask that quantity demanded, it's not necessary that prices will increase and the quantity purchased or quantity uh, demanded will decrease. What basically happens, there are number of factors that basically determine your demand. It is not necessarily the price that determines the demand. There are number of factors that will determine that basically determine the demand of the product. Sometimes you have the necessities, sometimes you have the emergencies,
Or you have the case of the substitutes as well. Consumers sometimes look for the substitutes as well. तो वहां पे भी वो प्राइस को कंपेयर करते हैं. Overall, what we can say once we talk about the law of the demand, we need to remember this thing that there is an inverse relationship. It is not the direct relationship. मतलब direct relationship we can discuss it. Say for example, demand is directly proportional to the price. मतलब price increase हो जाएगा, demand भी increase हो जाएगा. मतलब ये is it possible? Is it possible? कश्मीर में possible है. कश्मीर में ही possible है. It is possible in Kashmir only. Can you say how? Can you say how? No. जब तक कश्मीर में प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना ज्यादा नहीं होगा ना, तो लोग तब तक उस पर शक करते हैं कश्मीर में. मतलब ये सोच के कि भाई इस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तभी इसकी प्राइस कम है. तो लोग ज्यादा, आई मीन इट्स नॉट विद एवरीवन बट समटाइम्स इट डज हैपन कि भाई प्राइस क्यों कम है. कहनत के छुआत खराबी इसका साथ खराबी आस कहनत के इसका कत कर है यार प्राइस कम. It happens sometimes, but yes, once you talk about the direct relationship of the demand and the price, it is not possible. Basically, what happens with the majority of the customers is that once you increase the price of the product, the consumers tend to move towards substitutes. The consumers tend to move towards other products. Even once you talk about the medicine जो होता है ना, we have generic products and we have the brands as well. तो वहां पे जो होता है कस्टमर्स को, अगर आप देखेंगे ना कि कोई कोई जाना पहचाना ब्रांड है, तो उसका जो प्राइसिंग होगा ना ज्यादा होगा. और अगर जेनेरिक प्रोडक्ट होगा, जैसे नौशहरा साइड है, सोगरा साइड से है, वो अलग एक रिटेल आउटलेट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो बहुत इन्फ्लक्स है वहां पे क्योंकि वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहां पे. मतलब अगर आपको इंसुलिन लाना है, अगर आपको कोई ब्लड शुगर का जो है मेडिसिन लाना है, कोई टैबलेट लाना है, यू कैन परचेज इट फ्रॉम दैट रिटेल आउटलेट इन नौशहरा. लेकिन वहां की प्राइसिंग जो है वो कम है as compared to the retail outlets that are available within the vicinity of the schemes. लेकिन जो उनकी प्राइसिंग होगी, तो स्कीम्स की जो 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 आसपास, उसके आसपास जो रिटेल आउटलेट्स है, their pricing strategies are on higher side in comparison to this drugstore, to this retail outlet which is available in the Nowshera. So what happens? There is a buzz now. There's a buzz now. In fact, in the entire Lal Bazar, in entire Nowshera, in entire Sura, in even, I mean, in and around areas, that people should purchase from this retail outlet. Why? Basically, they are offering the medicine at the lower price. So once you are offering the products at the lower price, the demand is increasing. So that is the law of the demand. So that is the law of the demand. Say, for example, tomorrow, if you are being offered pizza at a lower price, say, for example, you have Amigos. Amigos tomorrow comes up with the pricing policies. Say a minimum, we can say a minimum discount policies are being offered by the Amigos. Then obviously, people definitely will rush. And in comparison to the grills, I hope you know both of them. Are you aware about these two retail outlets? Yes, sir. So we can say, for example, आपका यूनिवर्सिटी का अंदर का कैफे है, तो अगर उसकी प्राइसिंग ज्यादा है और बाहर आपका एमिगोज है, फॉर एग्जांपल, अगर एमिगोज में प्राइसिंग आपको लग रहा है, ऑब्वियसली देयर इज अ रिवर्स. तो मुझे लगता है कि ज्यादा एमिगोज की प्राइसिंग ज्यादा होती है. इज इट सो? इज इट सो? Is it Yes, so? sir. Chicken blast, have you heard about it? खाया है कभी? Yes, sir. How many would go to Chicken Blast twice a week? Yes, please. Yes or no? How many will go? How many would prefer
visiting chicken blast twice a week, thrice a week. लेकिन अगर ढाबा है यूनिवर्सिटी में तो कितनी बार, दिन में 2 बार भी जाते हैं लोग, हफ्ते में 7 बार भी जाते हैं. Is it so? It depends upon the pocket money. तो वहां पे this is important. So once we are discussing the law of demand, we cannot conclude it. Definitely, say once you talk about, say someone says it's not necessary. It depends upon the pocket money. So the pocket money becomes the reason. The pocket money becomes the mediator which influences the relationship. So if your pocket money is low, I mean, if it is on lower side, definitely your demand will be accordingly. But if your pocket money is on the higher side, again, we may like to visit grills, you may like to visit Amigos, you may like to visit Chicken Blast every day, not twice a day. तब तो स्टमक ही बैठ जाएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ये मतलब किसका जो हेल्थ इश्यूज है फिर वो ज्यादा हो जाएंगे. क्यों? तब तो वहां पे कंज्यूमर का वो होता है कि सैटिएबल, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फिर आ जाता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि अगर आप सेब खाते हो या आप अगर स्वीट्स खाते हो, स्वीट्स खाने में स्वीट्स होते हैं, मतलब ये मजेदार होते हैं, मगर एटलीस्ट एक स्टेज आता है कि जब आपको फिर आप खाना नहीं चाहते हो. अगर आप मतलब अगर आपके पास आपके सामने स्वीट्स है, आप खाएंगे. अगर आपको किसी ने वो गिफ्ट लाया है, आप खाएंगे. लेकिन एक स्टेज आ जाता है कि इंसान फिर थक जाता है, मतलब नहीं, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा, मेरा जो अभी इसमें मन नहीं कर रहा है कि मैं इससे ज्यादा खाऊं. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब कि अगर आप सेब खाएंगे, अगर आप ऑरेंजेस खाएंगे तो किसी हद तक आपको मजा आ जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा खाएंगे तो डिमिनिश हो जाएगा यूटिलिटी, मतलब आप उसको पसंद नहीं करेंगे. तो इसी तरह से once you talk about you talk about visiting the retail outlets again and again and again and again, it will definitely create the law of diminishing marginal utility. So that is again a different prospect. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, कि लॉ ऑफ डिमांड की अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, हाउ इट इंपैक्ट्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. हाँ, वहां पे इनकम भी एक फैक्टर है जो कि इंपैक्ट करता है. क्योंकि कोई, आई मीन देयर वुड बी पीपल who may like to visit Amigos, who may like to visit grills, who may like to visit Chicken Blast at least once in a week, at least once in a month, at least once in a year, in order to taste it out. हर कोई चाहता है कि नहीं मैं भी टेस्ट कर लूं, कम से कम एक बार तो कर ले. लेकिन मसला है कि वो बार बार क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन इश्यूज. एंड ऑन द अदर हैंड, you may have a consumer, you may have a client who will have no issues in visiting Amigos, in visiting grills, in visiting Chicken Blast every day. But with that person, with that customer, with that consumer, what would be the important point is कि वहां पे उसका income, उसके जो other factors है वो ज्यादा influence उसको करेंगे. Overall यही है कि जहां पे pricing policies, Sunday market, how much influx you see in Sunday market? Have you heard about Sunday market? संडे मार्केट में ज्यादा कस्टमर्स होंगे या आपके जो लैम्पर्ड लेन है या आपकी जो आबी गुजर लेन है वहां पे ज्यादा कस्टमर्स आते होंगे. फुटफॉल, वी कॉल इट कस्टमर फुटफॉल. लॉ ऑफ डिमांड को जब हम डिस्कस करते हैं, वी टॉक अबाउट द फुटफॉल. कहां पे फुटफॉल ज्यादा होगा? संडे मार्केट में फुटफॉल ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग ए पर्टिकुलर प्लेस, विजिटिंग ए पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट. कहां पे इनफ्लक्स ज्यादा होगा, कहां पे फुटफॉल ज्यादा होगा? संडे मार्केट में ज्यादा फुटफॉल होगा या आपकी जो लैम्पर्ड लेन है या लाचौक की जो आपकी जो बड़ी बड़ी वो जो रिटेल आउटलेट्स है वहां पे ज्यादा होगा? प्लीज. संडे मार्केट. एब्सोल्युटली, संडे मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, जो फ्लो होता है बहुत ज्यादा, जगह ही नहीं होती. बेसिकली दैट इज द लॉ ऑफ द डिमांड. हाँ, फिर आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि भाई हर जगह हो. भाई फैशन है, फैशन में बंदा नहीं देखता है भाई प्राइसेस हो क्या हो, कुछ नहीं भाई. आई एम अ प्रो फैशन कंज्यूमर. आई डोंट वरी अबाउट माय इनकम,
किसी ना किसी तरीके से जो बच्चा होता है, फॉर एग्जाम्पल, चाहे उसके फादर के पास पैसे हो या ना हो, उसको कोई चीज पसंद आ गई तो वो तो लेगा ही लेगा। वो तो एक बच्चे की बात है। लेकिन इसी तरह जो प्रोफेशन कस्टमर होता है, जो जो फैशन को अ, अ, जो उसका एक डिजायर होता है, उसको पाने के लिए ही इज रेडी टू परचेज even if the products are costly. Say for example, you talk about the t-shirts. Now आपकी t-shirt, say for example, most of the people would wear, we talk about middle class family, majority, क्योंकि कश्मीर में से सबसे ज्यादा जो customers है, they fall around the middle majority, not the upper class भी है लेकिन उतने नहीं है, ठीक है ना। तो middle and lower class जो है उसमें ज्यादा fall करते हैं। तो उसमें जो फॉर एग्जांपल, इफ वी गिव एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल 500 पर पीस, से फॉर एग्जांपल टी शर्ट फॉर 500, तो सब पहनते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन डिजायर होता है किसी का, नहीं मुझे ब्रांड लाना है, once you go for the brand, definitely the pricing will be on higher side. Now whether the desire for the brands because of the higher pricing would decrease, yes, and why not? Sir, if the price would increase, the demand would obviously decrease. No, we're talking about the brands. We're talking about the pro fashion consumers. उनके लिए प्राइस कोई माने नहीं है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उनके पास इनकम है, तभी तो वो फैशन को वो प्रेफर तभी करेगा ना। मतलब ये बिचार आशी कहते चुका करते फैशन मैंने कई बिचोर तो मगर वंस यू टॉक अबाउट द ब्रांड्स, तो वहां पे एक पोटेंशियल कस्टमर्स की हम बात करते हैं। वंस यू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड, मतलब कोई पोटेंशियल कस्टमर है, प्राइसिंग कितने भी इंक्रीज हो, क्या अगर उसको कोई टी शर्ट लानी है, प्राइस उसकी इंक्रीज हो रही है, क्या वो रोकेगा अपनी जो उसको परचेज है? क्या उसकी जो डिजायर है क्या उसको रोकेगा या परचेज करेगा? सर वो उसको परचेज ही करेगा, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी ना, सेटिस्फैक्शन। these are the exceptions. These are the exceptions. We call them exceptions. जैसे मैंने लिखा है लिमिटेशंस, वो जस्ट लिमिटेशंस चेंज इन टेस्ट और फैशन, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि ऐसे भी प्रो फैशन कस्टमर्स है। क्यों आज की जो कस्टमर्स है ना, वी टॉक अबाउट द वंस यू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, there's a difference, we call it the rationality and the irrationality. With rational customers, can we say that the persons who like fashion, they are not rational? Yes. Can we say that persons who are fashionable are not rational? Can you hear me? Faizan, can you hear me? मतलब मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि रैशनैलिटी इरैशनैलिटी होता है कि फॉर एग्जांपल बंदे को कुछ परचेज करना है तो वो सोच समझ के परचेज करता है, मतलब वो सारे फैक्टर्स को ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लैपटॉप लाना है, तो मुझे लगता है कि अगर आप लैपटॉप लाएंगे या आपने लाया भी है, तो आपने कितनी वेबसाइट्स चेक की होंगी, आपने कितनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स की चेक की होंगी, आपने कितने रिटेल आउटलेट्स को देखा होगा ऑनलाइन ही। तो दैट इज अ रैशनल बिहेवियर, दैट इज अ रैशनल बिहेवियर। लेकिन कितने लोग होंगे जो लैपटॉप को परचेज करते होंगे और कुछ भी नहीं देखते होंगे, आंख बंद के परचेज करते होंगे? यस, एंड दोज आर इरेशनल कस्टमर्स, they make decisions out of haste. So once you talk about the fashionable customers, they also make decisions on certain factors. But yes, again we are saying once you talk about the law of the demand, we say there are exceptions. There may be some customers who purchase it blindfolded, कुछ नहीं देखते हैं भाई, हमें परचेज करना है, बस परचेज करना है। होते हैं ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं, ऐसे कस्टमर्स आपके आसपास भी होंगे, ऐसे कस्टमर्स आपकी क्लास में भी होंगे।
तो अगर इसको स्टडी करेंगे, इस रिसर्च को, अगर इस पे रिसर्च करेंगे कि जो हमारा जो अभी बीटेक है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी जुपुरा कैंपस है, उसमें देखेंगे कि भाई कितने ऐसे कस्टमर्स हैं होंगे, एंड इट वुड बी सरप्राइजिंग, क्योंकि ये दिस इज ए हिडन फैक्ट। हाँ, उसके लिए फिर रिसर्च करना कि कैसे हम ढूंढेंगे कि भाई कौन सा रैशनल कस्टमर है, कौन सा इरेशनल कस्टमर है, उसके लिए भी फिर टूल्स अप्लाई करने पड़े। लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जो ब्लाइंड फोल्डेड परचेज करते हैं। सो द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू देम, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू देम। जैसे कश्मीरियों को, मतलब हम जैसे लोगों को, जैसे मतलब कश्मीरी वाजवान में, इट डज नॉट अप्लाई टू अस। इज इट सो? इज इट सो? क्योंकि भाई हम साल भर में अगर 10 भी हो, 30 भी हो, 40 भी इन्विटेशन हो, वी आर रेडी। It hardly matters for us. The law of diminishing marginal utility does not apply to the Kashmiri people. I'm part of it. I'm not excluding myself. ठीक है ना? Once we had one invitation from इलाहाबाद side. तो प्रोफेसर की बेटी की शादी थी, तो वहां पे आउटसाइडर्स थे, जो गेस्ट्स होते हैं ना आउटसाइड के, जो गेस्ट्स होते हैं ना आउटसाइड के, गेटिंग माय पॉइंट? तो वो हमें देख रहे हैं कि भाई हम कैसे खा रहे हैं, अल्लाह की कसम। वो रुक गए, वो परेशान हो गए, भाई ये कैसे खा रहे हैं। चलो ठीक है, हम फिर उठाते भी हैं और घर भी लेते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलूं कि दिस डज नॉट अप्लाई टू अस इन टर्म्स ऑफ दी वंस टू टॉक अबाउट दी वंस टू टॉक अबाउट द सर्मनीज, वंस टू टॉक अबाउट दी मैरिज फंक्शंस। चलो वो अपना कल्चर है, हमें 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 उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी खाने में मजा आता है, चाहे हमें 10 हो 40 हो इन्विटेशन हो, हम खाएंगे। तो लेकिन on the other side there is a law of demand. Exceptions are always there. Exceptions are always there. We need to identify those exceptions. Change in income. इनकम ज्यादा हो गया भाई, अगर आपका इनकम ज्यादा हो गया, वहां पे अगर प्राइसिंग भी इंक्रीज हो रही है, तो कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा। इफेक्ट वहां पे पड़ता है, मतलब डिमांड का वहां पे इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है, अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑन हायर साइड है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनकम आपका कांस्टेंट, अगर इनकम आपका कांस्टेंट नहीं है, तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एनी एग्जांपल? यस, एनी एग्जांपल यू हैव फैजान? शाहीजहां खान, वसीम, राफिया, आकिब, शुएब, ओवैस, बासिल साकिब, शहनवाज अली, आदिल, बाजिला, फुरकान। कैन यू हियर मी? हेलो? Yes, sir. वसीम शाह, Yes, sir. Wasim, can you throw some discussion on this point? What we call the limitations of the law of demand, and particularly change in income. Sir, it is inversely affected. Demand is inversely affected by price. Absolutely. So how come the change in income becomes a limitation? Yes, sir. It becomes a limitation. Sir, if we see this scenario, COVID scenario, presently our income is declining and our demand is also declining. No, what we are saying कि जो आपका प्राइस जो ही इंक्रीज होता है, the limitation is जो ही आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। बट once you talk about the limitation, we are talking change in income. अगर चेंज इन इनकम हो जाता है, मतलब अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनकम ज्यादा हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड लेस नहीं हो जाएगी, वो बराबर रहनी चाहिए। सिंपल। आपका जो अगर इनकम ज्यादा हो जाता है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना। यस 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 प्लीज।
एग्जैक्टली, इनकम जो ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो उतना आपका जो स्कोप है, जो एम्बिट है आपका, वो बढ़ जाएगा. The more income you have, the more luxuries you would like to have in your life. Yes. The quantity purchased would be more. अगेन, तो यहाँ पे इनकम का भी एक लिमिटेशन आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड में, तो वहां पे अप्लाई नहीं हो जाता है. आप कितनी भी प्राइसिंग इंक्रीज कर लो, लेकिन अगर आपके पास इनकम ठीक ठाक है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो कोई इशू नहीं पड़ेगा. तो इशू तो उन पे पड़ जाएगा, तो ये लॉ ऑफ डिमांड तो वहां पे इनकम अप्लाई हो माफ हो जाएगा. जाएगा. यस यस प्लीज. सर फिर तो कोई यस इशू नहीं प्लीज. रहेगा, यानी कि सर जितनी हमें जरूरत है हम किसी भी हाल में वो खरीदेंगे सर, फिर उसकी प्राइस क्यों ना कितनी भी हाई हो जाए, फिर भी हम, जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं ऑब्वियसली उसको सेल एग्जैक्टली, बाय मेरी करूंगा. इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, तो गाड़ियों की जो अभी रेट है वो तो पुरानी रेट नहीं है ना. तो इसका मतलब नहीं है कि गाड़ियों की रेट वो जो है भी वो बात इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी की जो स्विफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल एंडेवियर है, उनकी दिन ब दिन जो प्राइसिंग पॉलिसीज है वो बढ़ती जा रही है. तो इसका ये मतलब नहीं उसकी है वजह से, लेकिन कि वो डिक्लाइन, डिक्लाइन डिमांड नहीं हो डिक्रीज हो रही है, डिमांड जाएगी. बढ़ रही है. जैसे आपका पेट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं है कि Yes. पेट्रोल जो जो उसकी, हाँ, वी कैन से कि जो जिन लोगों का इनकम कम है उनके लिए वो चाहेंगे कि मोर कंजर्वेटिव रहे, वो चाहेंगे कि उनका पेट्रोल कम ही खर्च हो. लेकिन भाई साइड में आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े एम्प्लॉयज है, उनके लिए कोई असर नहीं होता है भाई, उनका रेगुलर काम है, वो चलता जाएगा. उन पे कोई Yes. असर नहीं है इसमें, यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसीज का. प्राइसिंग पॉलिसीज पे अगर किसी पे असर है तो वो उस पे है जो लोअर लोअर मिडिल क्लास है, उन पे असर पड़ जाएगा. लॉ ऑफ डिमांड वहां उनके लिए अप्लाई हो रहा है. तो जो आपके रिच पीपल है, अंबानीज है, उनके लिए कोई असर नहीं है. मतलब अंबानीज को तो छोड़ो यार, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन. Even we talk about the people in Kashmir, it hardly matters for them. Once you talk about the customers who have better income, I mean they will work on it. They will use it. It is not good. Their purchases are not going to be halted by the increase in the price. Why? Because the income is important for them. उनके लिए जो उनको जो पेट्रोल आ रहा है, that is the income. Income itself is a petrol for them. So this petrol is not going to make the increase in the petrol is the prices of the petrol are not. I mean, this is not going to make any impact on their purchase. So then we have the discovery of the substitutes. The discovery of the substitutes, it can also be a limitation. It can also be a limitation. Can anyone say how? So suppose a substitute comes in a market with a lower price, so everyone will prefer the substitute Exactly. instead of using the particular product. हाँ, तो मतलब कि भाई ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा दी, आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा दी, लेकिन अगर वहां पे इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, दैट क्वांटिटी डिमांड इट विल नॉट डिक्रीज. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. We need to assess both the aspects. We need to assess both the sides of the law. That is the demand and inverse relationship of the price. So once pricing is increasing, we are saying that D will decrease. Once P will increase, D will decrease. But yes, increase of the substitutes, this D will not decrease. This D will remain constant. In fact, ज़्यादा ही बढ़ जाएगा. पचलुक दबाना में हम ज़्यादा है कि साधन. ठीक है ना? So in case of the substitutes is not going to faces the limitation in case of the availability of the substitutes. हाँ, substitutes नहीं है, आपके substitutes नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा. मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड, as per law of demand, if we say the substitutes are available, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाएगी. सबसे अवेलेबल क्या हो, बोलिए. सर आपकी आवाज कट रही, कैन यू रिपीट प्लीज? मैं ऊपर चढ़ूंगा, ठहरो, जस्ट अ मिनट प्लीज. इज इट फाइन नाउ? लो, इज इट यस ओके सर. नाउ? यस सर. बताओ ना, जो जो ही आवाज
who are caught in their own dreams, who are caught in their own, we can say, their own schedule. So once they are caught in their own schedule, so they cannot look out for the substitutes. They cannot look out for the different pricing policies. So law of demand does not apply to them as well. So ignorance is again a factor where the law of demand does not satisfy. Then we have the inferior goods. So in case of the inferior goods, the law of demand does face the what we can say the limitation. Can anyone say how? Inferior goods. Can anyone say how? Sir, No? if inferior goods provide us with the same amount of work and quality, then everyone will prefer that. नहीं, inferior goods में what we basically say, अगर आप inferior goods की pricing कितनी भी decrease करेंगे ना, what will happen to the amount of purchases? Sir, what exactly are these inferior goods? Inferior goods means जो मतलब जो substandard goods होते हैं ना, substandard, मतलब substandard, we can say a substandard product. Yes. Hello. No. Substandard product है, उसकी pricing कम हो रही है. So what will happen to the demand? वो increase, सर उसमें almost उतना फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा. कहाँ होगा भाई? कौन सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट परचेज करेगा? वो तो कोई ऐसा ही होगा ना जो मजबूर होगा. मतलब कितने इस क्लास में है, अभी हमारा जो क्लास है इसमें कितने लोग जो है वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट परचेज करेंगे और उनकी प्राइसिंग कितनी भी कम हो जाए. हेलो. ये सर इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मोस्ट, बिकॉज मैं आपको एग्जांपल दूंगा. आपने clubfactory.com देखा है? क्लब फैक्ट्री देखा है? ये सर. ऑनलाइन रिटेलर देखा है आपने? जी सर, जी सर. जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे आपका अमेजोन है, जैसे आपके दूसरे रिटेल आउटलेट्स है, इसी तरह आपका clubfactory.com है. तो वहां पे जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है ना, बहुत कम होती है. मैंने भी एक बार परचेज किया था जैकेट उनके ऑनलाइन रिटेल आउटलेट से. तो जब मैंने वो रिसीव किया ना, दैट वाज टोटली सब स्टैंडर्ड. क्या मैं बोलूं आपको, मुझे वो पैसे भी रिटर्न में फिर नहीं आए, 1,000 रुपीज. लेकिन जो उन्होंने दिखाया था ऑनलाइन, जो उन्होंने वेबसाइट पे दिखाया था, दैट वाज अ गॉर्जियस प्रोडक्ट. लेकिन once I saw that product physically, it was a substandard product. So what happens with these substandard products? I never turned it for the purchases again. Never ever. I never ever thought about purchasing from clubfactory.com, even if the pricing of the product is on the lower side because of the substandard product. तो वहां पे ये लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई. आप कितनी भी प्राइसिंग कम करो, फिर लोगों को पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो नहीं आएंगे. तो आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास कभी नहीं आएंगे. कैसे आएंगे भाई? आपकी सर्विस ठीक नहीं है, आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो कैसे किस लिए आएंगे? मतलब आपका कोई टीचर है, आपका कोई प्राइवेट ट्यूशन कर रहा है, आप मान लीजिए आपका 1,000 कोई पर मंथ मांगता है, वहीं पे आपका कोई टीचर आ जाता है, वो आपको 300 मांगेगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ द टीचिंग है वो ठीक नहीं है, तो कितने जाएंगे उसके पास? सर बहुत कम. क्योंकि बिकॉज दिस इज द इंफीरियर. The substandard products, the substandard services, there are very less customers. In fact, negligible customers. Then we have the conspicuous necessities, जैसे टीवी सेट्स, कार्स एंड सो ऑन. वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड उतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि लोगों को वो परचेज करनी है. जिसके पास इनकम है उसको वो परचेज करनी है. आज उसके पास मारुति 800 है, कल उसके पास सेंट्रो होगी, उसके पास एंडेवर होगी, उसके पास डस्टर होगी. ये ऐसा नहीं चलता है. उनके लिए ये लॉ ऑफ डिमांड उतना इम्पैक्ट नहीं रखता है. देन वी हैव द इमरजेंसी.
भाई इमरजेंसीज है, कोई भी प्राइसिंग हो, यू आर रेडी टू परचेज इट। इमरजेंसीज में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, क्योंकि भाई इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में मतलब आपका इमरजेंसी में ये है कि यू हैव द नेसेसिटी, यू कैन नॉट थिंक अबाउट द प्राइसिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेसेसिटी। किसी पेशेंट की लाइफ बचानी है, वी डोंट थिंक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट एट दैट टाइम। भाई परचेज करना है, भाई यू आर रेडी टू स्पेंड लैक्स, यू आर रेडी टू स्पेंड hundreds and thousands rupees for the safety of the patient. And similarly, once you talk about the emergencies, other emergencies, I mean, it hardly matters. The pricing of the product hardly matters during emergencies. So that is the law of the demand. And then we have the elasticity of demand. It cannot be taken today. We will discuss it tomorrow. I will try to be fast. I mean, it's not possible for me to go fast. So we will try to make most of it in the coming days. जो भी मेरे पास possible होगा मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं fast नहीं जा पाऊंगा. It is very difficult. हमने 2 ही slides आज पढ़ी. This is the issue with me. I cannot go fast. Is it okay? Any question you have? Any question you have, please? Yes. Inferior good substandard. मतलब substandard good. मतलब मैंने अब एग्जांपल दे दी, एक बहुत सारी एग्जांपल। अगर का सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था ऐसे, वहां पे जो लोग है उसमें उतना परचेज नहीं करेंगे, वहां पे लोग वहां उतना परचेज नहीं करेंगे, इवन इफ द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑन लोअर साइड, इवन इफ द प्राइस इज डिक्रीजिंग। आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको और एक अच्छी एग्जांपल दी थी, कॉमन एग्जांपल है कि भाई आपका जो फॉर एग्जांपल कोई ट्यूशन सेंटर है, कोई प्राइवेट कॉलेज है, तो वहां पे मान लीजिए आपकी प्राइसिंग कम हो रही है। आपके गवर्नमेंट स्कूल्स अभी कश्मीर के एक बेस्ट एग्जांपल है, कितने जाते हैं उनके पास, इवन द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑन लोअर साइड। हम नहीं बोलेंगे कि सब स्टैंडर्ड है वहां पे, लेकिन हाँ वहां पे टीचर्स उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी उनको करनी है। एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए, जैसे आपका दिल्ली में है, दिल्ली में सिस्टम है, वहां पे मैक्सिमम पीपल जो है दे स्टडी फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स। You need to have such type of system in the Kashmir as well. So we are not targeting any society, we are not targeting any system, but we are just saying कि अभी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट स्कूल के बहुत लो है, मुझे बोलिए उनके कितने कस्टमर्स होने चाहिए? यस प्लीज। नहीं है, ज्यादा कोई नहीं प्रेफर करता है। सोसाइटी में अगर आप देखेंगे ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रेफर करता है कि अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल भेजे। इवन जो गरीब से गरीब होगा वो भी चाहता है कि मैं बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में भेज दूं, चाहे फिर वो कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, बिकॉज यू टॉक अबाउट द सर्विसेज, द इंफीरियर सर्विसेज दैट हैव बीन produced by the so called, I mean, the schools. Yes, अगर आप वहां पे अपनी सर्विस जो है रेज करेंगे तो तब जाके अगर आपकी वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है तो आप देखेंगे कि इन्फ्लक्स कितना बढ़ जाएगा। अभी का जो फुटफॉल है बहुत कम है बिकॉज ऑफ द इंफीरियर सर्विसेज, वी आर नॉट गेटिंग द डिजायरेबल सर्विसेज। ये दोनों का उसमें फिर वन शुड टॉक अबाउट द responsibility is on the society, responsibility is on the customers as well, and the responsibility goes on to the people who are delivering the services. उन पे भी ज्यादा तो उन्हीं को है। मतलब अगर आप स्कूल में आपको अपना जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करना पड़ेगा एज ए टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपका जो डेकोरम है, योर लाइफ इज, यू आर अ टीचर, you are bound to be associated with your student, I mean for majority of your life. ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि it goes for everyone. One should talk about being a teacher. It means that your life is your life is supposed to be around your student. I mean your life, the decorum of life is determined by the strength of your students. तो यहाँ पे अगर if you talk about the inferior service, अब तो ये आ गया, मैंने खुद नहीं लाया क्योंकि क्वेश्चन उठा तो करना पड़ा। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई आपकी जो सर्विस है ना वो सुपीरियर होनी चाहिए, तब जाके आपको आई मीन यू विल गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। लेकिन इंफीरियर है तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज उनमें जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको प्राइवेट स्कूल में पहले से ही भर्ती होती है,
उससे ज्यादा तो फिर सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है बिकॉज ऑफ देयर services, inferior products. Is that okay? Is that okay? Any question? Any more question you have? Question, please. We'll meet tomorrow, inshallah, positively, inshallah. मैं बहुत busy हूँ, बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करूँगा मैं, इंशाल्लाह, ठीक है ना? Is that okay? एग्जाम कब है आप लोगों का? सर ऐसे तो टेंटेटिवली पता है कि मे बी 26-27 सितंबर से होगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता है। ओके, तो आज लेट अस ट्राई। तो मैं इससे तेज नहीं जा सकता हूँ। इज इट ओके? यस सर। मैं कोशिश करूंगा। मैंने ये बोला कि कोशिश मैं करूंगा, जितना हो सकेगा मैं विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इज दैट ओके? कल यस सर, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर मुझे आज भी फुर्सत मिली शाम तक, तो कैन वी हैव वन मोर क्लास? अगर मुझे आज शाम तक फुर्सत मिली? Sure, sir. यस Yes, sir. यस। वो आई कैन नॉट कंफर्म, आई कैन नॉट प्रॉमिस। यहाँ से देखो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी, ये तो इन्होंने लगा दी कोई मैसेज, कोई मैसेज आई होगी, तो शायद कोई ना कोई असाइनमेंट आया होगा, तो देखते हैं। वी विल मीट अगेन टुडे और टुमारो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।